A very good morning to you all, dear students. We are going to understand 6 marks questions from the chapter Retirement of a Partner based on the preparation of revaluation account and partners capital account. Be very attentive while understanding the concepts as we are going to cover up the most important section of the chapter. So, in this chapter, we are going to first understand how to prepare partners capital account. This is the master format of partners capital account. Just for your clarity, thereafter we will start with the questions. Just have to quickly have a short recall, a recapitulation of the topic partners capital account, how to prepare. First of all, we write down balance brought down. For example, A's capital was 1 lakh, B's capital was 2 lakh. This is just an example for your better understanding. And partner C has a capital of 3 lakh. So there are 3 partners. And in this question, say for example, B is the retiring part. B is the retiring part, right? So what all we write in the partner's capital account to first understand the concept. By reserve, any reserve appearing in the balance sheet, any profit and loss account balance appearing in the balance sheet on the liability side also to be distributed, any contingency reserve, or in fact any workman compensation reserve. These all are distributable items. For example, they are equal partners and there is a reserve or profit and loss account of 30,000. So 10, 10, 10,000 we will distribute among all the partners. This is number one. And if the firm earns revaluation gain, then revaluation gain earned by the firm is also to be divided among all the partners. Suppose, for example, firm has earned a profit of 6. So we will be dividing in old ratio among all the partners. Admission may only among old partners. No new partner is included in the revaluation gain or loss. But yes, in retirement, all partners are eligible to get the share in revaluation account. Right? Then any item on the debit side, for example, revaluation loss, we will distribute on the debit side if there is loss on revaluation. If there is gain, it comes on credit, and if there is loss, it comes on debit. So that will also be divided among all the 3 partners, right? Then comes, students, one more point. If any of the partner takes over an asset, suppose partner B has been given investments after retirement in part payment. So asset taken over point also comes on the debit side. Asset taken over, right? Suppose B has taken over investments of 8,000 at 8,000 only. If we will take over at more value or less value, the effect will also be shown in the revaluation account. So this is, you can say, one of the effects shown on the debit side. One also a very common thing which we show on the debit side, that is goodwill. What is this goodwill? This is basically goodwill written off. Yes, the goodwill shown on the asset side of balance sheet is compulsorily written off. For example, it is 9,000. So we will do 333 among all the parties. ओल्ड गुडविल एडमिशन में सिर्फ ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होती है और रिटायरमेंट में तीनों में डिस्ट्रीब्यूट होकर राइट ऑफ हो जाती है. नाउ कम्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द चैप्टर, दैट इज एक एंट्री हमने सीखी है इसमें, गेनिंग पार्टनर टू रिटायरिंग पार्टनर. फॉर व्हाट? फॉर गुडविल. लास्ट 2 क्लासेस में यू हैव अंडरस्टूड वेरी वेल that goodwill, when it is valued, it is to be shared between गेनिंग पार्टनर्स. तो गेनिंग पार्टनर सपोज करें हमारे ए और सी हैं, दोनों ने ही गेन किया उसके शेयर को. इन दैट सिचुएशन, डियर चिल्ड्रन, विल बी राइटिंग कॉन्ट्रा एंट्री बाय एस कैपिटल अकाउंट, और सी ने भी पे किया. सी वाज आल्सो सपोज अ गेनिंग पार्टनर. एस कैपिटल, सीज कैपिटल, और अमाउंट विल बी शोन इन बीज कैपिटल. वेरी राइट. Suppose they have paid as per the gaining ratio. I'm telling you, suppose the gaining ratio was 2:1,
which we calculated after subtracting new minus old. So 2010, 30,000 इन्होंने B को पे किया. First effect will be on the credit side, and what will be the contra effect? तो B's कैपिटल अकाउंट करेंगे कि एंट्री आपने वर्किंग नोट में बनाई होगी A C to B, तो टू B करके अमाउंट किससे चार्ज हो जाएगा? फ्रॉम A एंड B. तो टू B करके A और C में आएगा, और बाय A एंड बाय C करके we will show in the B's capital. This is most important. Do not write by goodwill or something like that. Be very, very alert. So this is the basic idea of preparing partners capital account, how to prepare partners capital, and now I'm going to explain to you how to close the accounts. What is the method to close the accounts on retirement of a partner? So basically, the total is coming here 1,12,000 of Mr. A, and for Mr. B, the answer, the total is coming 212 and 30. 2 lakhs and 32. This is the retiring partner total. और इसका आ रहा है 3 lakh and 12,000. These are the totals we are getting. Okay. Just for example, this is an explanation going on. This is not a actual figure of any question, for your understanding, so that when I explain to you, you should not be surprised what is this. और जो हमारे remaining partners हैं, them we will calculate balances. Why carried down? Because they will continue with the business. So if we have to subtract the debit side items, like 23,000 is the amount which we are going to subtract from 1,12,000, what we are going to get is 89,000. This 89,000 will be shown on debit side as balance carried down. Retiring partner का balance carried down हो नहीं सकता because he is the outgoing partner. So 13,000 we will subtract. What we are going to get is 2 lakhs and 99,000 for partner C. This is how we calculate the balance carried down. Now comes the most important part, retiring partner का. 2,32 स्टूडेंट्स टोटल है हमारे पास. बी का अगर आप देख रहे हैं तो ध्यान से, तो बी का टोटल इज कमिंग अप टू बी 2,32,000. इस 232 में से अब आप देखिए 8 and 3 11,000 इज लेफ्ट. तो हमारे पास 232 में से अगर हम 11,000 सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं इनका, तो कितना अमाउंट बच रहा है? 2,21,000. यहाँ पर फॉर्म कहती है इनसे कि सर आउट ऑफ दिस 2,21,000 वी आर रेडी टू गिव यू कैश रुपीज 21,000. If the firm says that yes, you are eligible to get some cash, so fine. The firm has an availability of cash. आपने बैलेंस शीट में देखा कैश या बैंक बैलेंस था. 21,000 रुपीज आपने पे कर दिया रिटायरिंग पार्ट. तो आउट ऑफ 221 अगर आपने 21 पे कर दिया है, तो हाउ मच इज लेफ्ट टू बी पेड? 2 लाख रुपीज. ये जो 2 लाख रुपीज का बैलेंस है, दिस वी कैन शो एज ए लोन. फॉर्म कहती है राइट नाउ वी आर ट्रांसफरिंग दिस बैलेंसिंग फिगर इनटू योर लोन अकाउंट. तो दिस इज द बैलेंसिंग फिगर. फॉर्म कैन ट्रांसफर द एंटायर बैलेंस ऑल्सो. फॉर्म पूरा बैलेंस भी ट्रांसफर कर सकती थी 221 का, लेकिन फॉर्म के पास अगर कैश अवेलेबल है कितना रुपीज 21 या उससे थोड़ा ज्यादा, तो फॉर्म इज इन अ पोजिशन टू पे 21,000. तो ये 21,000 रुपीज फॉर्म पे कर देगी, और बाकी बचा हुआ बैलेंस कहाँ ट्रांसफर कर देगी? पार्टनर के लोन अकाउंट. So this is how the basic idea of partners capital account is given to you all from this master format, and this will be a good learning for you to understand the concept which I will be explaining in the remaining part of this class. So we look into the first question from our own book on page number 5.81. You can open your book and accordingly we will start with the question. X, Y, and Z are partners sharing profits in proportion to their capitals. यहीं पर देखिएगा गलती होने के चांस हो गए आपके. आपने देखा नहीं, आपको लगा शायद ये इक्वल पार्टनर्स हैं. वैसे भी ये बोर्ड का क्वेश्चन है, और बोर्ड के क्वेश्चन में रेशो में चैलेंज ना हो, ऐसा होना बहुत ही टफ है. सो प्लीज रिमेंबर दैट प्रोपोर्शन ऑफ कैपिटल जब दे रखा है हमको, तो इट मीन्स देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो वाज दिस 963 90 60 30,000. अगर हम इसको सिंप्लीफाई करके लिखेंगे 963, तो 3 3s are 9, 3 2s are 6, and 3 1s are 3. So what is the old ratio given in the question? 3:2:1. That is why it is always suggested कि क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो.
Okay, so these are the liabilities. Creditors, workman compensation fund. What is workman compensation fund, students? Workman compensation fund is a divisible item. Just now I explained in the master format. General reserve, again a divisible item. Cash, debtors, less provision दे रखा है. Stock, machine and building. On the above date, Y retired owing to ill health. The following adjustments were agreed upon for calculation of amount due to Y. अब वाई को हम क्या क्या देंगे ऑन द डे ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन. रिटायरमेंट एक रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फॉर्म है. व्हाट ऑल वी आर गोइंग टू पे टू द पार्टनर, दैट इज ऑल वी हैव टू सी. प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट टू बी इंक्रीज्ड अप टू 10% ऑन डेटर्स. देखिए इंक्रीज्ड अप टू कह रहा है यहाँ पर, तो अगर अप टू कह रहा है तो दिस इज फर्स्ट ऑफ ऑल गोइंग टू बी शोन इन द रिवैल्यूएशन अकाउंट. 10% ऑफ डेटर्स, तो 21,000 के डेटर्स जो हमें दे रखे हैं, उस 21,000 के डेटर्स का 10% हम कैलकुलेट करेंगे. प्लीज रिमेंबर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, हमेशा ग्रॉस वैल्यू जो दे रखी है बैलेंस शीट में, इनर वैल्यू इस वैल्यू पर निकालते हैं, ना कि इस वैल्यू पर. तो 21,000 का 10% आ रहा है 2100. फॉर्म ने मेंटेन करना है, यहां तक बढ़ाना है अपने एग्जिस्टिंग प्रोविजन को. 1400 का प्रोविजन हमारे पास ऑलरेडी है, इस 14,000 को बढ़ाकर कहाँ लेकर जाना है, 2100 तक. तो बताइए कितने रुपीज से बढ़ा दें कि 1400 जो है वो 2100 बन जाए. ऑब्वियसली 700. लेकिन यहाँ पर एक लर्निंग यहाँ पर ये है कि अगर इंक्रीज्ड बाय होता, had it been increased by 10%, तो हम 2100 ही लेते, we would have taken 2100 rupees. But it is mentioned increased up to, यहाँ तक बढ़ा दो. If it is to be increased up to 10%, then undoubtedly we are going to take up the difference. up to में difference लेंगे, और अगर increased by होगा तो हम same value ही transfer करेंगे जो निकल कर आएगी debtors का 10%. Goodwill of the firm is valued at 36,000. Goodwill firm की valued हो गई and adjusted into the capital accounts of X and Z, who are going to share future profit in the ratio of 3:1. तो gaining to retiring वाली एंट्री हम पास करेंगे, और कौन सी रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, गेनिंग रेशो, यू नो वेरी वेल. इंक्लूडेड इन क्रेडिटर्स 2500 फॉर एन आउटस्टैंडिंग लीगल क्लेम विच विल नॉट अराइज. एक क्रेडिटर्स में 2500 का क्लेम है जो अब वो नहीं मांगेंगे आपसे, तो आपके लिए क्या है, ये गेन. और गेन है तो रिवैल्यूएशन के कहां पर आएगा, क्रेडिट साइड. वेरी गुड. सेकेंड लास्ट पॉइंट, एक्स एंड जी ऑल्सो डिसाइडेड. एक्स और जी ने क्या डिसाइड करा, that the total capital of the new firm consists of two partners. रिटायरमेंट के बाद कौन बचा है, x and z, will be 1,20,000. तो x और z अपना कैपिटल मेंटेन करेंगे 1,20,000. इट मींस बैलेंस कैरी डाउन जो हम निकालते हैं टोटल करके, अभी हमने सिखाया आपको इन द मास्टर फॉर्मेट, ये हमें पहले ही दे रखा है. तो 1,20,000 x and z will transfer to their capital accounts as balance carried down in what ratio, 3:1. तो 3:1 में अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो इट विल बी 90,000 टू x, और z की कैपिटल कितनी हो जाएगी, पार्टनर z विल हैव 30,000 रुपीज एज कैपिटल. तो 90,000 एंड 30,000 पर इन्होंने कैपिटल को अग्री कर लिया है मेंटेन करने के लिए. एक्चुअल कैश टू बी ब्रॉट इन और पेड ऑफ एज द केस मे बी. सो एक्चुअल कैश जो है पार्टनर लेकर आएंगे या फिर उनको पे ऑफ हो जाएगा, यानी कि जो भी बैलेंस बचेगा, क्योंकि बैलेंस कैरी डाउन तो हमने पहले ही कर लिया है, तो वॉट एवर बैलेंस विल बी लेफ्ट विल बी क्लोज थ्रू कैश अकाउंट. अब यहाँ पर लास्ट पॉइंट वो और बोल रहा है, वाई विल बी पेड 9,000 इमीडिएटली एंड बैलेंस विल बी ट्रांसफर टू हिज लोन अकाउंट. जैसे हमने आपको अभी एक मास्टर फॉर्मेट में समझाया, उसी तरह से यहाँ पर है कि 9,000 का कैश फर्म ने दे दिया, क्योंकि फर्म के पास 15,000 कैश अवेलेबल है. देखिए बैलेंस शीट में अब ऊपर, तो ये बैलेंस शीट में अवेलेबल है, तो फर्म ने कहा चलो 9,000 तो हम इसको दे देते हैं, बाकी जितना भी बैलेंस है सर आपका, मिस्टर वाई को बोले एक्स और जी हम आपके कहाँ ट्रांसफर कर देंगे, लोन अकाउंट. अंडरस्टूड क्लियरली. प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट. तो वी आर गोइंग टू फर्स्ट प्रिपेयर पार्टनर्स कैपिटल एंड रिवैल्यूएशन अकाउंट. बैलेंस शीट तो आप लोगों को आती है अपने आप बनानी, दैट यू कैन ट्राई योरसेल्फ. आई विल गिव यू अ ब्रीफ एक्सप्लेनेशन ऑफ बैलेंस शीट. Let us solve this question number 43 from your own book, right? So let us see the question number 43, revaluation account. We come to the solution of this question. First point क्या बोल रहा था क्वेश्चन में वो आपसे, कि हमें provision for doubtful debts create करना है. How much provision for doubtful debts, students? I simply explained to you 21,000 का 10%
तक हमें पहुंचाना है एग्जिस्टिंग प्रोविजन, यानी 2100 तक लेकर जाना है, और ऑलरेडी कितने रुपीस का है, 1400। अप टू कह रहा था, आई हैव टेकन एज डिफरेंस। देन वन मोर पॉइंट वाज गिवन, क्रेडिटर्स में 2500 रुपीज हमारे हैं, क्योंकि अब हमारे अराइज ही नहीं होंगे फ्यूचर में। दैट विल बी प्रॉफिट फॉर यू, गेन। दैट्स ऑल इन द रिवैल्यूएशन अकाउंट। यू गॉट full marks in the revaluation account. So simple. If you find such questions, you are really blessed that revaluation account, if goes correct, chances of capital accounts are very, very bright to have full marks. तो gain on revaluation account जो हमारा ये हुआ है, हमें कितने रुपीस का हुआ है, you can check it out. Gain on revaluation transferred to capital, right? Transferred to capital accounts. We will be transferring this to all the partners, partner X, Y and Z in their profit sharing ratio. 1800 को अगर हम डिवाइड करेंगे 3 to 1, जो कि उनकी कैपिटल रेशो थी, दैट इज देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो एज वेल, तो वी विल बी डिवाइडिंग इट। तो 6 से अगर हम इसको कट करते हैं तो 900 एंड 600 एंड 300, दिस इज 963 के रेशो में हमने डिवाइड कर दिया रिवैल्यूएशन गेन को, एंड वी गॉट द करेक्ट आंसर। Then we move to what? Partners capital account. But please do not go to partners capital account before passing the journal entry for goodwill. Absolutely. Working note छोटा सा आप बना दें, जहां पर कि आप क्या कैलकुलेट करके बताओगे, गेनिंग रेशो, राइट। तो गेनिंग रेशो हमारी क्यों यूज में आएगी, क्योंकि गुडविल की एंट्री ही हमारी गेनिंग टू रिटायरिंग होती है। तो इफ आई कैलकुलेट फॉर एक्स एंड जेड, वी क्विकली सॉल्व द क्वेश्चन फॉर एक्स एंड जी। एक्स का ओल्ड रेशो था 3/, न्यू रेशो हमें क्वेश्चन में गिवन है, कितना गिवन है न्यू रेशो, द ओल्ड रेशो एंड न्यू रेशो, द फॉर्मूला इज न्यू माइनस ओल्ड, एंड न्यू रेशो इज गिवन 3:1, एंड ओल्ड रेशो वाज गिवन 3:2:1। इन दिस सिचुएशन एक चीज हम यहाँ पर आप पहले भी बताया था कि अगर आप देखिए, अगर हम इसमें पार्टनर वाई का शेयर में अगर 1 मिनट के लिए रिमूव करके देखूं तो कितना रेशो बच रहा है हमारा, 3:1। और यहाँ पर ओल्ड रेशो कितना है, एक्स और जेड का कितना रेशो है। देखिए यहाँ पर एक्स वाई जेड 3 पार्टनर्स थे, अगर हम वाई का शेयर कट कर रहे हैं इसमें से तो कितना बच रहा है, 3:1। यहाँ पर भी 3:1। तो न्यू और जो ओल्ड रेशो जो हमारी रिमेनिंग कट करके बच रही है एक्स और जी की, वो सेम है। तो यहाँ से ये चांस ब्राइट है कि हमारा न्यू रेशो और गेनिंग रेशो विल बी द सेम। लेकिन फिर भी हम कैलकुलेट करके देख लेते हैं कि गेनिंग रेशो उतना ही आता है जितना न्यू रेशो है या नहीं, जस्ट टू गिव यू कॉन्फिडेंस। लेकिन अगर आप आउटगोइंग पार्टनर का शेयर रिमूव करके देखो और वो न्यू रेशो के बराबर हो, तो देयर इज नो नीड टू कैलकुलेट द गेनिंग रेशो, क्योंकि ही गेनिंग मान सकते थे आप। 3/6 एंड what was the ratio of Z? 1/6. Let us calculate, students. It is 6 and 4 का LCM कितना बैठेगा? It will be 12. Very nice. तो 9 minus 6 कितना आ रहा है? Divide 12. अगर हम इसको कैलकुलेट करें, it is coming 1/12. Students देखिएगा आप, 3:1 ही गेनिंग रेशो रहा। There was no need to calculate. बट एक ये कॉन्सेप्ट है जो आपको आना चाहिए, हाउ टू मैनेज विद द सिचुएशन। अच्छा, कैपिटल अकाउंट हम अभी बनाएंगे, पहले हम अपनी एंट्री करके रख लेते हैं रफ में, एक्स जेड टू वाई। ओके, यह हमारा वर्किंग है हमारा, तो इसलिए हम शॉर्ट फॉर्म यूज कर रहे हैं कैपिटल की कैप। तो क्विकली हम देखते हैं कि वाई का कितना शेयर था जो पे करना है पार्टनर्स एक्स और जेड ने। तो मिस्टर एक्स एंड जी विल पे वाई's share, which is total goodwill of the firm, given 36,000. Y share used to be 2/6. So 6 6 the 36, 6 to the 12. 12,000 rupees will be paid by X and Z in 3:1 ratio. 9,000 and 3,000 जो कि कॉन्ट्रा एंट्री करके दिखाई जाए। डन। वेरी वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड, कहीं कोई मुश्किल आने वाली है नहीं आपको। अब आपने पेडागोजी समझ ली है कि हाउ टू attempt the question, a long answer question। सबसे पहले रिवैल्यूएशन, then goodwill का ट्रीटमेंट, and then closing the capital accounts। 90 60 30 बैलेंस लिख देंगे। आफ्टर दैट we will be posting the revaluation account gain which we have got, इसको इंस्टेंटली ट्रांसफर कर दीजिए, भूलना नहीं है रिवैल्यूएशन गेन को।
क्योंकि हम लोग अकाउंट पूरा बना देते हैं लेकिन रिवैल्यूएशन का गेन या लॉस ट्रांसफर करना भूल जाते हैं। प्लीज मेक इट स्टेप 1। 963 में ही हमने इसको डिस्ट्रीब्यूट करा था कि कैपिटल रेशो ही इनकी ओल्ड रेशो थी। उसके बाद हमें दो रिजर्व दे रखे थे, दोनों डिस्ट्रीब्यूटेबल्स थे। कौन कौन से रिजर्व है क्वेश्चन में, बैलेंस शीट में देखिए, वर्कमैन कंपनसेशन एंड जनरल रिजर्व। So both the reserve are divisible. We will be distributing it. देखते हैं वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 9000 3:1 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इन देयर ओल्ड रेशो। दोनों चीजें हमारी 3:1 में ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशो में डिवाइड हो जाएंगे। 6 से डिवाइड करेंगे, 15 इंटू 3 45, 15 टू 30 3000 एंड 1500। परफेक्ट। देन वी विल डिवाइड जनरल रिजर्व विच इज 6000। बड़े ही इजीली हो जाएगा 3:1 के रेशो में, 3 2 एंड 1000 विदाउट एनी टफ कैलकुलेशंस। अब स्टूडेंट्स आपने एक एंट्री करी है फॉर द गुडविल। क्या एंट्री करी थी? कॉन्ट्रा एंट्री। यस, यू आर राइट। वी विल बी शोइंग इट एज अ कॉन्ट्रा एंट्री बाय एक्स कैपिटल अकाउंट एंड बाय पार्टनर जी कैपिटल अकाउंट। ये दोनों किसको पे कर रहे हैं? दे बोथ आर पेइंग टू पार्टनर वाई। हाउ मच हैव दे पेड? 9000 एंड 3000। एंड ऑन द डेबिट साइड इसका कॉन्ट्रा इफेक्ट आएगा। क्या इफेक्ट आएगा? टू वाई कैपिटल अकाउंट करेंगे और अमाउंट किस में ट्रांसफर करेंगे? वाई में या एक्स और जी में? अनडाउटेड एक्स एंड जी। विल बी पोस्टिंग इट लाइक दिस। डन। वेरी वेरी सिंपल। हमने 9000 का कैश भी पे करा है पार्टनर किसको? वाई को। वो पार्ट पेमेंट जो हमने करा है दैट वी विल रिकॉर्ड एज टू कैश 9000 रुपीज। सिंपल, राइट? देन पार्टनर्स हैव एग्रीड। कौन से पार्टनर्स? एक्स एंड वाई ने कहा, एक्स एंड जेड ने कहा कि सर वी विल मेंटेन अवर कैपिटल इन अवर न्यू रेशो। तो कैपिटल उन्होंने कितनी फिक्स कर दी है? 1,20,000। इस 120,000 की कैपिटल को वो लोग 3:1 में करना चाहते। दिस इज द मोस्ट सिंपल कैपिटल एडजस्टमेंट। जब न्यू फर्म की कैपिटल गिवन हो और उसको हमें डिवाइड करना हो रिमेनिंग पार्टनर्स एक्स एंड जी में, और वो भी न्यू रेशो। वाई न्यू रेशो? बिकॉज दिस इज द कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म। तो अगर हम 90 और 30 करके डिवाइड कर दें देन वी विल गेट द करेक्ट आंसर। तो 90 एंड 30 इज द कैपिटल ऑफ द रिमेनिंग पार्टनर्स एक्स एंड जी, जिसको हमने फिक्स कर दिया है 1,20,000 पर। एंड वी आर थ्रू विद द क्वेश्चन एंड यू कैन be 100% sure of full marks in a long answer question like this in the examination. I don't think anybody will face any problem. आप देख सकते हो सारी एंट्रीज एक बार चेक कर लो टॉप टू बॉटम। फर्स्ट अटेम्प्ट में आपका आंसर आना चाहिए। टेक ऑल द स्टेप्स वेरी वेरी केयरफुली। तो यू कैन वेरी वेल मेक आउट कि यहाँ पर हमारा 54 एंड 84, तो 98,400 रुपीज टोटल यहाँ पर आ गया इनका। यहाँ पर टोटल आ जाएगा 56 एंड 12,000 एंड 517,000, तो 77,600। ओके, एंड टोटल ऑफ पार्टनर जी विल बी 2528, तो 32,800। A very sincere advice to all of you: do not go at the back of the answer sheet to do the totals. Please maintain a rough area of calculation in your own answer book in the same page where you are doing the accounting, right? तो अब आप देखो हमने टोटल तो कर लिया है इसका, लेकिन यहाँ पर स्टूडेंट्स एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है समझने वाला कि आप देखो कि कौन सी साइड हैवी है। आफ्टर डूइंग दिस कैपिटल एडजस्टमेंट हमने देखा कि एक्स पार्टनर जो हमारा ये कैपिटल एडजस्टमेंट हमने करा है, एक्स का डेबिट साइड हैवी था। तो वी विल बी मेकिंग टोटल ऑफ फर्स्ट दिस साइड 99,000। तो जो भी साइड हैवी होगी उसका टोटल उठाकर आप दूसरी साइड पर ले जाएं एंड यू कैन कंफर्टेबली क्लोज द अकाउंट। हाउ वुड यू क्लोज द अकाउंट? बिकॉज सर एक्स का क्रेडिट साइड हैवी नहीं था, डेबिट साइड हैवी था। तो 99,000 इज द अमाउंट, और जितना भी बैलेंसिंग फिगर बचेगा दैट वी विल ट्रांसफर टू कैश अकाउंट। बाय कैपिटल एडजस्टमेंट करने के बाद जितना भी बैलेंसिंग फिगर बचेगा, वो बोल रहा था एक्चुअल कैश टू बी पेड ऑफ और ब्रॉट इन एज द केस मे बी। तो दिस 600 विल बी शोन एज ए बैलेंसिंग फिगर ऑफ एक्स। और अगर आप जेड का देखो तो जी पार्टनर का भी हमारा डेबिट साइड ही एक्स्ट्रा था। सो प्लीज बी वेरी अलर्ट while doing this calculation.
हम लोग पहले ये चेक करेंगे कि कैपिटल जब हमने पहले ही फिक्स कर दी है, इस कैपिटल को हम पुट कहाँ करें। दिस कैपिटल विच वी हैव मेड द टोटल चिल्ड्रन, वी विल बी पोस्टिंग इट लाइक दिस। 33,000 में से अगर हम ये 31, 32, 32, 800 कम कर दें तो बैलेंस कितना बचता है, 200 रुपीज। तो ये दोनों बैलेंसिंग फिगर्स बाय कैश अकाउंट कर कर आ जाएंगी। रिटायरिंग पार्टनर का बैलेंस यू नो वेरी वेल विल बी ट्रांसफर्ड टू हिज विच अकाउंट, लोन अकाउंट। एब्सोल्युटली राइट। जो पार्टनर हमारे बचे हैं मिस्टर वाई, इनका पैसा चला जाएगा लोन में, और एक्स एंड जी का डेबिट साइड का टोटल हैवी था, दिस वाज हैवी, दिस वाज आल्सो हैवी, तो डेबिट साइड वाज हैवियर, तो क्रेडिट साइड पर जो बैलेंसिंग फिगर बचेगी दैट विल बी बैलेंस कैरीड डाउन। दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू क्लोज द कैपिटल अकाउंट्स। ओके। अब अगर बैलेंस शीट के लिए अगर वो आपसे बोल रहा है क्वेश्चन में, तो आई जस्ट एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ बैलेंस शीट so that you can very well make out how to prepare the balance sheet। क्योंकि एग्जाम में ये ना सोचिएगा कि बैलेंस शीट नहीं आ रही है, बैलेंस शीट इज द पार्ट ऑफ आवर सिलेबस। हाउ टू प्रिपेयर द न्यू बैलेंस शीट, आई विल गिव यू द आइडिया, यू प्रिपेयर योरसेल्फ। क्रेडिटर्स सेम कॉपी करेंगे, वर्कमैन कंपनसेशन फंड डिस्ट्रीब्यूट हो गया है, जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट हो गया है, विल नॉट शो। कैपिटल्स हम न्यू लिखेंगे, किसकी, एक्स की कितनी कैपिटल थी, 90,000, एंड व्हाट अबाउट पार्टनर जी, इट इज 30,000। तो कैपिटल्स हमारी 1,20,000 की हम बैलेंस शीट में दिखा देंगे, और ये दोनों हमारे नहीं आएंगे, तो 1,20,000 की कैपिटल एंड 16,600 इज द क्रेडिटर्स। और 16,600 में से एक पॉइंट था हमारा क्रेडिटर्स पे कि 2,500 के क्रेडिटर्स पे ऑफ नहीं होंगे, तो वी विल सब्ट्रैक्ट 2,500 एंड इट इज गोइंग टू गिव यू 14,100। 14,100 के क्रेडिटर्स आ जाएंगे न्यू बैलेंस शीट में, और 120,000 का आपका क्या आ जाएगा, कैपिटल्स। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, वाई का लोन अकाउंट भी बैलेंस शीट में ही दिखाया जाएगा, विच वी हैव जस्ट कैलकुलेटेड। तो वाई लोन अकाउंट विल आल्सो बी अ पार्ट ऑफ द न्यू फॉर्म्स बैलेंस। तो रिवैल्यूएशन के दोनों इफेक्ट्स, और वाई का लोन अकाउंट विच इज 68,600। दिस इज हाउ 68,600 का हमारा लोन आ जाए। तो ये तीन चीजें आपको लायबिलिटी साइड पर दिखानी होंगी, द न्यू फॉर्म्स कैपिटल, द क्रेडिटर्स आफ्टर सब्ट्रैक्टिंग दैट गेन, एंड अकॉर्डिंगली विल गेट द आंसर। और यहाँ पर 15,000 का कैश है, इसमें हम प्लस कर देंगे कौन सा कैश, विच पार्टनर्स आर ब्रिंगिंग। देखिएगा कैश पर एडजस्टमेंट हमारी आ गई लास्ट में 600 एंड 200, तो दिस 600 एंड 200 पार्टनर्स लेकर आ रहे हैं बाय कैश में, दोनों हमारे ऐड हो जाएंगे, एंड इट विल बी 15,800 एज ए कैश बैलेंस। क्विकली आई एम एक्सप्लेनिंग। एंड डाउटफुल डेट्स 21,000 का हमारे डेटर्स हैं, फाइनल वैल्यू 2,100 हो ही गई है, माइनस कर देंगे, स्टॉक पर सेम आ जाएगा, मशीनरी हमारी सेम आएगी, और बिल्डिंग भी हमारी सेम ही आएगी। अकॉर्डिंगली children, you will be getting the complete answer of the balance sheet. Try it on your own. I am sure you will all do justice while preparing the balance sheet. But must remember that balance sheet is very much a part of your syllabi. So kindly do it, because ऐसा हो सकता है कि क्वेश्चन में एग्जाम में आपको रिवैल्यूएशन का गेन निकाल कर दे रखा हो, और फिर आपसे बोले कि नाउ यू प्रिपेयर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट। ओके। अच्छा, वन मोर क्वेश्चन, 40th, एक्स वाई एंड जी। देखिए ये क्वेश्चन हमारा एमसीक्यू में आ सकता है, जो कैपिटल एडजस्टमेंट आपने अभी सॉल्व करी है, फिक्स कैपिटल पार्टनर्स की वाली। एक्स एंड वाई एंड जी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2:1 ऑन 1st April 2009। वाई रिटायर्ड फ्रॉम द फर्म, एक्स एंड जी अग्रीड टू फिक्स देयर कैपिटल एट 2,10,000। यू नो वेरी वेल, जब कैपिटल फिक्स दे रखी हो करके हमको एक्स और जी की या रिमेनिंग पार्टनर्स की, तो हम कौन सी रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, उस पार्टनर का शेयर हटाकर जो पार्टनर रिटायर हो गया। इन विच रेशियो, 3:2। वेरी गुड। Capital accounts of X and Z, after all adjustments, showing a balance of 1,45,000 and 63,000 respectively। X और Z की जो कैपिटल बच रही थी, सारी एडजस्टमेंट्स करने के बाद, यानी कि रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट, रिजर्व वगैरह डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद, वो इतनी इतनी डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद बच रही थी। स्टेट द बताओ अमाउंट ऑफ एक्चुअल कैश टू बी ब्रॉट इन और पेड टू द पार्टनर्स अकॉर्डिंगली। सो हमें कितना कैश वो लेकर आएंगे, जो हमने अभी ऊपर कैलकुलेट करा है क्वेश्चन में स्टूडेंट्स, वो वाली वैल्यू हमें निकालनी है। एक बार मैं आपको यहाँ समझा देता हूँ, ये जो बाय कैश है, ये हमें निकाल कर दिखाना है, हाउ मच कैश विल बी ब्रॉट इन और पेड ऑफ टू द पार्टनर्स एज द केस मे बी। और आपको फाइनल बैलेंस कैरी डाउन जो हमारे
बच रहे हैं बैलेंस बिफोर दिस कैपिटल एडजस्टमेंट, वो हमें दे रखे हैं 1,45,000 and 63. So in this question what we are going to do is simple. अब आपको ये जो कैपिटल्स हैं वो आपको निकालनी होंगी. अब इसको सॉल्व कैसे करना है एग्जाम में, ये आप समझ लीजिए. इट कैन बी अ 3 मार्कर, इट कैन बी अ 1 मार्कर एज वेल. इसमें आप पहले कैसे सॉल्व करोगे इस टाइप के क्वेश्चंस को, कि पहले आप पार्टनर्स के नेम लिखेंगे. यहाँ पर आप लिखेंगे एडजस्टेड कैपिटल एंड न्यू कैपिटल, दोनों कैपिटल्स आप लिख लो. ये न्यू कैपिटल हमारी है, कितनी गिवन है हमको, 2,10,000. इसको आप डिस्ट्रीब्यूट कर लो इन न्यू रेशो बिटवीन एक्स एंड जी. व्हाट इज द न्यू रेशो? अच्छा, न्यू रेशो क्वेश्चन में गिवन नहीं है, तो 3:1 से आप स्ट्राइक ऑफ करो y का शेयर. इन 3:1 you just divide this money. So if I divide this capital, it is coming to be 157,500. x को मिलेगा 157,500 एंड पार्टनर y को तो कुछ नहीं आएगा क्योंकि न्यू कैपिटल सिर्फ रिमेनिंग पार्टनर्स की होती है, एंड 52,500 इन 3:1 रेशो. अच्छा, अब कैपिटल कितनी एग्जिस्ट कर रही है, दैट इज एडजस्टेड कैपिटल विच इज एक्चुअली एग्जिस्टिंग. इट इज गिवन क्लियरली इन द क्वेश्चन 145,000 एंड 63,000. इतनी कैपिटल तो मेंटेन करनी है फ्यूचर में. फ्यूचर में क्या करनी है, ये कैपिटल इन्होंने मेंटेन फिक्स कर दिया कि इतनी कैपिटल के साथ हम बिजनेस आगे रखेंगे. और ये कौन सी कैपिटल है, एग्जिस्टिंग कैपिटल. जो हम लिख रहे हैं इसको लिखना जरूरी नहीं है, दिस इज जस्ट फॉर योर एक्सप्लेनेशन. इतना इन्होंने एग्जिस्ट कर रहे हैं ये कैपिटल, एंड दैट इज व्हाट दे हैव टू मेंटेन. सो अगर आप एक्स का देखो, इतना उसका कैपिटल है, इतना उसने मेंटेन करा हुआ, इतना उसने इस टाइम मेंटेन्ड है प्रेजेंटली. तो टेल मी व्हाट इज द डिफरेंस, 12,500 रुपीज उसने और लाना पड़ेगा. एक्स विल ब्रिंग, क्योंकि एक्स की कैपिटल इस टाइम 145 है, मेंटेन कितनी करनी है फ्यूचर में, 157,500 चिल्ड्रन. तो अनडाउटेडली एक्स विल ब्रिंग इनटू द बिजनेस, एक्स पैसे लेकर आएगा. व्हाट अबाउट मिस्टर जी, कैन चेक फ्यूचर में कितनी कैपिटल मेंटेन करनी है, 52, और अवेलेबल कैपिटल कितनी है इनके पास, 63. यानी कि अवेलेबल कैपिटल ज्यादा है और जो मेंटेन करनी है वो कैपिटल कम है. तो कम कैपिटल मेंटेन करनी है तो इनके पास सरप्लस है. एंड इफ इट इज सरप्लस, हाउ मच सरप्लस स्टूडेंट्स, 10,500 सरप्लस है. और सरप्लस पर क्या मानेंगे कि ये इसने विड्रॉ कर दिया. तो पार्टनर जी विल विड्रॉ द मनी. तो यही हमें निकालना था, हु विल ब्रिंग एंड हु विल विड्रॉ. और अगर जर्नल एंट्री आपसे पूछता तो क्या एंट्री करते हैं आप, पार्टनर एक्स विल ब्रिंग कैश अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट. और अगर वो आपसे एंट्री बोलता वाई के विड्रॉ, जेड के विड्रॉ करने की, तो वी वुड हैव रिटन जीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट बीइंग surplus withdrawn and being deficit brought in cash. This is what deficit. जितना मेंटेन करना है उतना कैपिटल नहीं है, तो देयर इज अ डेफिसिट, कमी पड़ रही है. बीइंग डेफिसिट ब्रॉट इन कैश, डेफिसिट ब्रॉट इन कैश एंड बीइंग सरप्लस विड्रॉन. दिस शुड बी द नरेशन. सो एनीवेज क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड, आपसे चाहे वो पूछे इन द फॉर्म ऑफ एमसीक्यू, वो आपसे पूछता है इन द फॉर्म ऑफ जर्नल एंट्रीज या कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट. बी प्रिपेयर्ड फॉर एवरी टाइप ऑफ क्वेश्चन. सिंपल है, एक पार्टनर बाय कैश करेगा और एक पार्टनर टू कैश करेगा. तो जरूरी नहीं कि बैलेंसिंग फिगर हमेशा टू कैश करके ही आए या बाय कैश करके ही आए. नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट प्रॉफिट, नेक्स्ट कैपिटल एडजस्टमेंट वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड नाउ. कैन सी 45th क्वेश्चन. Amit, Balan and Chandar are partners sharing profit in the ratio of 1/2, 1/3, 1/6. इसको हैंड टू हैंड कैलकुलेट करके देखो. 2 3s are 6, 3 2s are 6 and 6 1s are 6. So 3:2:1 is the old ratio. Chandar retired on 1st April. Balance sheet given है हमें. Creditors are given. Employee Provident Fund never to be distributed. Never. Never distributed because this is created out of employee salary. So that is why it is never distributed. Workman Compensation Fund, yes, we divide. But EPF never. General Reserve डिवाइड करेंगे ओल्ड पार्टनर्स के ओल्ड रेशो में. कैपिटल्स, बैंक डेटर्स लेस प्रोविजन, स्टॉक, मशीनरी, इन्वेस्टमेंट
and patents are given. स्टूडेंट्स एसेट साइड तक पढ़ना चाहिए हमें क्वेश्चन को. कई बार बोर्ड पेपर में आप देखोगे कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट यहाँ पर लिखा हुआ आता है, और हम लोग नहीं पढ़ने की वजह से, केयरलेस पढ़ने की वजह से ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भूल जाते हैं डिस्ट्रीब्यूट करना या गुडविल को राइट ऑफ करना. So be prepared, it may be given on the asset side. Very important to notify. It was agreed, goodwill valued at 27,000. We know very well, goodwill को हम क्या करेंगे? Gaining to retiring. Depreciation 10% to be provided on machine, कर देंगे, loss है. Patent to be reduced by 20%, loss है. Old photocopier previously written off was sold for 600. ये हमारे लिए गेन है. ये सोल्ड हुआ है, तो हमारे लिए अगर ये गेन है तो कहाँ आएगा? रिवैल्यूएशन अकाउंट में. एक अनरिकॉर्डेड एसेट है, पहले हमारा कहीं नहीं था बुक्स में, एसेट साइड में यहाँ पर, बट अब हमें ये एसेट मिल गया. ये हमारे लिए क्या हो गया? गेन की सिचुएशन. चंदर टुक ओवर इन्वेस्टमेंट्स एट 15,800. वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू नोट. बोर्ड का टिपिकल क्वेश्चन है ये, देखिए दिल्ली 2015 में भी आया है, जहां पर ये इन्वेस्टमेंट टेक ओवर हो रहे हैं. आप देखो, इन्वेस्टमेंट 10,000 की थी. नो डाउट पार्टनर इज टेकिंग ओवर द एसेट, तो डज नॉट मीन कि इसका रिवैल्यूएशन में इफेक्ट नहीं आएगा. 100% रिवैल्यूएशन में इसका गेन नजर आ रहा है 5800 का. पहले हम रिवैल्यूएशन में इसका गेन रिकॉर्ड करेंगे, एंड देयर आफ्टर वी विल शो इन द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. प्लीज मेक यू अंडरस्टैंड एंड डोंट फॉरगेट इट. टू रिमेंबर टिल द एग्जामिनेशंस. अमित एंड बालन ने डिसाइड करा टू एडजस्ट देयर कैपिटल्स इन प्रोपोर्शन ऑफ देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. देखिएगा, लास्ट क्वेश्चन जो लास्ट कंसेप्ट करा था वहां पर हमको दे रखा था कैपिटल फिक्स करके. यहां पर हमसे वो बोल रहा है कि कैपिटल्स टू बी एडजस्टेड इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. कैपिटल्स हमें गिवन नहीं है, तो जो एडजस्टेड कैपिटल्स होंगी अमित और बालन की, आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट निकल कर आएंगी, दैट वी विल टोटल एंड डिस्ट्रीब्यूट इन व्हाट? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. यहां पर क्या बोल रहा है? बाय ओपनिंग करंट अकाउंट्स. सो जो बैलेंसिंग फिगर अभी हम प्रीवियस कॉन्सेप्ट में, प्रीवियस क्वेश्चंस में कर रहे थे, टू कैश बाय कैश, इंस्टेड ऑफ टू कैश बाय कैश हम लोग कहाँ ट्रांसफर करेंगे? करंट अकाउंट्स. तो प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट ऑन चंदर्स retirement. Simple and a very very easy question, but undoubtedly an important question of the chapter. So we start with the next question. Amit, Balan and Chandar based question given on page number 5.81. Let us start the question. The first point, goodwill वाला point तो हमने छोड़ ही दिया है, वो तो हम after evaluation account करेंगे. We'll be doing quickly machinery का depreciation. How much is the depreciation and what is the value? देखिए क्वेश्चन में कितना लिखा है? डेप्रिसिएशन 10%. मशीनरी इज गिवन 48,000. 48,000 10% इज हाउ मच? 4,800 rupees. Patents to be reduced by 20%. Patents were clearly given 5,000. So 5,000 का 20% we will be calculating, students. We are going to get 1,000 rupees as patent का depreciation. Loss है हमारे लिए. Old photocopier previously written off, now sold. Sold means we have got the cash. Now it is sold off, completely sold off. So in the question it is written bank, तो हम instead of cash bank लिख देंगे. Photocopier हमारा sold हो गया है. This is basically an unrecorded asset. So we will be just recording it and balance sheet बनाते टाइम बैंक में ऐड कर देंगे. चंदर टुक ओवर इन्वेस्टमेंट एट 15,800. इन्वेस्टमेंट से 10,000 के चंदर ने टेक ओवर करें. सर टेक ओवर तो उसमें आएगा कैपिटल अकाउंट में, लेकिन उससे पहले हमारा रिवैल्यूएशन में क्या आएगा? गेन. दैट वी विल नोट इट डाउन. तो नाउ यू कैन सी दैट depreciation at 10% we have calculated, and we have calculated how much of the 10% of the machinery was 48,000. So we have calculated 4,800 rupees. And thereafter patent भी समझ में आ गया होगा आपके. Patents were to be reduced by 20%. So 5,000 का 20% reduce कर दिया हमने 1,000. Old photocopier आपने sold कर दिया, not in 400 but in 600 rupees. Be careful. So we got it 6,400. Credit side is more. We'll be writing 6,400 rupees as the total of the credit side. एंड फ्रॉम 6,400 5,800 में से इसमें से माइनस कर दीजिए डेबिट साइड का टोटल. हमारे पास गेन आ जाएगा जो कि ट्रांसफर हो जाएगा इन द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ऑफ अमित, बालन एंड चंदन. ट्रांसफर टू कैपिटल.
अमित, बालन एंड चंदर। अब आपने ऊपर अगर लिख दिया है कैपिटल अकाउंट, देन नो नीड टू राइट अमित कैपिटल, बालन कैपिटल एंड चंदर्स कैपिटल। वेरी वेरी सिंपल। अमाउंट हमारा आ रहा है 600 का गेन। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो आपने देख ही ली थी, 3:1 थी, तो 3:1 में इसको हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। वेरी वेरी इजी। एंड छोटा सा हम एक वर्किंग नोट बनाएंगे। व्हाट फॉर? वी आर गोइंग टू मेक द वर्किंग नोट फॉर गुडविल। अच्छा, रेशो हमको गिवन नहीं है, न्यू रेशो। बहुत ही इजी हो गया हमारे लिए। ये गेनिंग रेशो वाला स्टेप हमारा हमें नहीं लेना पड़ा। 3:1 में से अगर आप देखो तो इसमें चंदर इज द रिटायरिंग पार्टनर चिल्ड्रन। लास्ट पार्टनर रिटायरिंग है, ध्यान रखना है, सेकंड वाला पार्टनर रिटायरिंग नहीं है, जो कि नॉर्मली हम देखते हैं। तो 3:2 इज सेट टू बी द न्यू एज वेल एज व्हाट रेशो? गेनिंग रेशो। अगर किसी आउटगोइंग पार्टनर का शेयर स्ट्राइक ऑफ करके जो बचता है, अगर हम उसको न्यू रेशो मान के चलते हैं, तो गेनिंग रेशो भी वही होती है, बिकॉज इट्स नॉट गिवन इन द क्वेश्चन न्यू रेशो। तो न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो करने की जरूरत ही नहीं है। अब आपको गुडविल फॉर्म की दे रखी थी 27,000। इसमें से चंदर का शेयर आप निकाल सकते हो। चंदर शेयर वॉज 1/6। 1/6 हम कैलकुलेट करेंगे 27,000 का, विच इज कमिंग स्टूडेंट्स हाउ मच? 4,500 रुपीज, विच वी विल डिवाइड बिटवीन अमित एंड बालन। तो अमित एंड बालन हमारे पे करेंगे चंदर को। चंदर को कितने पैसे मिलेंगे? 4,500 रुपीज, विच वी विल डिवाइड इन 3:2 रेशो। तो 2,700 Amit will pay and 1,800 Balan will pay. This is how the entry will come to its end. तो वर्किंग नोट हमारा गुडविल का तो हो गया है। वेरी वेरी सिंपल इट वाज, एंड आई होप कि कैलकुलेशन ठीक होगी हमारी ये। 5, 9, 3 27 and 1,800. ओके, बाय बैलेंस brought down we'll be doing now. Quickly, rapidly we will finish up the question. 40,000, 36,500 and 20,000. 40,000 is the capital of Amit, 36,500 and 20,000 will be doing the capitals. ये स्टेप ले लिया। अब आप रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट ट्रांसफर कर दो। कि रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट अगर हमने ट्रांसफर नहीं किया हैंड टू हैंड, देन इट इज अ पॉसिबिलिटी कि हमसे कोई मिस्टेक हो रही है। रिवैल का प्रॉफिट हम भूल जाएंगे ट्रांसफर। 300, 200 and 100 is the rival gain, and there was any reserve, so reserve भी distribute कर दो. Yes, there was a general reserve, so we will be distributing general reserve among the partners. It was 9,000, so 3:1 में अगर आप करोगे 6, 15, 15 threes are 45, 15 twos are 3,000 and 15. टेबल्स कम से कम 15 तक तो याद रखने चाहिए, अदरवाइज तो 20 तक पूरा लर्न होना चाहिए। This will be of a great help in the exams. You don't need to multiply again and again. Children, be very careful about doing the calculations. Okay? अच्छा, अब आप देखो, रिवैल्यूएशन कर लिया हमने, ये कर लिया है जनरल रिजर्व का डिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ पर एक पॉइंट बोल रहा था कि चंदर ने इन्वेस्टमेंट ले ली, तो हमने आपको मास्टर फॉर्मेट में आपने बताया था कि अगर पार्टनर एसेट कोई टेक ओवर करता है तो उससे उसकी कैपिटल कम हो जाती है, बिकॉज इज विड्रॉइंग हिज कैपिटल इन अ वे। तो व्हाट वैल्यू he has taken it over? 15,800. So 10,000 की चीज 1,500 15,800 में लेकर गए, तो इट वाज अ गेन which we have already shown in the revaluation account, और पार्ट पेमेंट में उन्होंने क्या ले लिया? इन्वेस्टमेंट्स। इट वाज एन इंपॉर्टेंट पॉइंट। अच्छा, गुडविल की एंट्री क्या करी थी आपने? बाय अमित कैपिटल। ये हम डिफरेंट कलर में इसलिए कर रहे हैं ताकि आपको याद रहे हाउ टू सॉल्व इट इन दी एग्जाम्स। अमित और बालन ने how much money they have paid to Chandar? 2,700 and 1,800. Quickly we will post it, and thereafter we will pass the contra entry. Very good. To Chandar capital कर देंगे, और Chandar capital करके in whose capital account we will transfer children? In Amit's capital account and in Balan's capital. This is how we are going to close the question. And जो पार्टनर चंदर हैं उनका बैलेंसिंग फिगर उनके कौन से अकाउंट में पहुंचेगा? चंदर के लोन अकाउंट। यू नो वेरी वेल, रिटायरिंग पार्टनर का बैलेंसिंग फिगर गोज टू हिज लोन अकाउंट, एंड फॉर रिमेनिंग पार्टनर्स दैट आई विल बी एक्सप्लेनिंग टू यू हाउ टू सॉल्व द क्वेश्चन. ओके, so that part you have to
लर्न एंड अंडरस्टैंड वेरी केयरफुली, क्योंकि जो एडजस्टमेंट हम अब करेंगे, बोर्ड ने बहुत कॉमनली इस एडजस्टमेंट को पूछा है एग्जाम्स में. तो नाउ next 2 minutes will be very very important for all of you. Before we come to the end of this account, first of all we make the total of the capital accounts. सबसे पहले आप लोग क्या कैलकुलेट करोगे? एडजस्टेड कैपिटल्स ऑफ विच पार्टनर्स, क्योंकि अमित और बालन ने कहा है हमारी न्यू कैपिटल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में होनी चाहिए. भाई कैपिटल तो गिवन नहीं है हमारे पास, तो आप अमित की अगर कैपिटल निकालोगे स्टूडेंट्स, दिस इज द स्टेप 1. जब भी कभी वो आपसे बोले कि रिमेनिंग पार्टनर्स वांट्स टू डिस्ट्रीब्यूट देयर कैपिटल्स इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, अमित की कैपिटल कितनी आ जाएगी? 44,800 क्रेडिट साइड का टोटल माइनस डेबिट साइड का टोटल इज 2,700, 42,100 if I am not wrong. Please check it. And then thereafter we will calculate for partner whom? Which partner it is? Balan. So it is going to be 37. क्रेडिट साइड देखिए आप, राइट हैंड साइड पर बालन का कितना कितना है? 36,500, 200, 36,700, 39,700 रुपीज माइनस डेबिट साइड. व्हाट इज द डेबिट साइड का टोटल? 1,800. 39,700 माइनस 39,700 माइनस 1,800, इट इज गोइंग टू गिव यू 37,900. अब आप देखो इन दोनों के पास इतना कैपिटल अवेलेबल है, और इस कैपिटल को ये लोग कौन सी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में एडजस्ट करना चाहते हैं? न्यू रेशो. तो अगर हम टोटल करें इन दोनों की टोटल कैपिटल इस टाइम कितनी अवेलेबल है? जो बैलेंस बचा है इनके कैपिटल अकाउंट में 80,000 दोनों का मिला. अब स्टेप 2 में आप इसको न्यू रेशो में डिवाइड करो, तो वो हो जाएगी इन दोनों की न्यू कैपिटल, जिसको हम बैलेंस कैरी डाउन कर देंगे. न्यू कैपिटल ऑफ अमित एंड बालन बताएं कितनी आएगी? न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो आपको गिवन है, जो कि आपने निकाली ही थी. 3:2:1 थी, तो 3:2 हमारी कैपिटल बच गई थी. 3:1 was the ratio. This is the outgoing partner. 3:2 is the new ratio. इसी रेशो में हम डिवाइड कर देंगे अमित और बालन. हाउ मच? 80,000 रुपीज. 3/5 will be how much? 48,000, and 32,000 will be the capital of another partner. So simple, we are able to get the answer. तो स्टेप 1, स्टेप 2, कैपिटल निकाली दोनों पार्टनर्स की, उस कैपिटल को न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में डिवाइड कर देना है. और कहाँ लिख देना है? टू बैलेंस कैरिड डाउन. पहले ही लिख देंगे जैसे कि हमने प्रीवियस कॉन्सेप्ट में करा था, लेकिन उसमें कैपिटल गिवन थी, उसको सिर्फ डिस्ट्रीब्यूट करना था. यहाँ पर पहले दोनों की एडजस्टेड कैपिटल निकाली, कितना बैलेंस बच रहा है, एंड देन वी हैव डिवाइड. दिस इज द ओनली डिफरेंस. 48 and 32,000. Very very easy. And do remember, it is the second partner who is existing, third partner is the retiring. अब आप देख सकते हो कि दोनों की कैपिटल्स भी आ चुकी हैं. कैपिटल अकाउंट हमने ऑलमोस्ट डन कर लिया है, सिर्फ बैलेंस निकालना रह गया है. एंड दिस इज हाउ वी कम टू द एंड ऑफ दिस क्वेश्चन. सो इफ यू कैलकुलेट, तो यहाँ का टोटल ज्यादा आ रहा है डेबिट साइड का, 50,700, 50,700 चिल्ड्रन. इसमें बोल रहा था कि बैलेंसिंग फिगर एनी बैलेंस लेफ्ट करंट अकाउंट्स आर टू बी ओपन. तो यहाँ पर आप अमित का पैसा जो बैलेंस बचेगा, दिस इज द बैलेंस लेफ्ट, अमित के कहाँ ट्रांसफर कर दोगे? करंट अकाउंट में. दिस इज द बैलेंसिंग फिगर चिल्ड्रन. इस बैलेंसिंग फिगर को अगर आप कैलकुलेट करते हो, अमित का बैलेंसिंग फिगर आना चाहिए 5,900. और पार्टनर, जो दूसरे पार्टनर हैं हमारे, उनका क्रेडिट साइड हैवी है, तो क्रेडिट साइड का टोटल कितना है? 39,700. और इस 39,700 को उठा के आप यहाँ ले जाएंगे, पिक इट अप एंड शो इट ऑन द डेबिट साइड. जितना बैलेंसिंग फिगर बचेगा विल ऑल्सो बी ट्रांसफर टू, यस एब्सोल्युटली राइट, करंट अकाउंट. बोल रहा है कि करंट अकाउंट में ही ट्रांसफर करना है बैलेंसिंग फिगर को. बैलेंसिंग फिगर अगर आप कैलकुलेट करके देखो सेकंड पार्टनर की, तो इट इज 33,800. और अगर हम उसमें 5,900 लिख दें ऐड करके, इट विल बी द सेम. तो ये सबसे बड़ा चेक पॉइंट है कि दोनों करंट अकाउंट के बैलेंस सेम आएंगे हमारे. करंट बाय करंट बैलेंसिंग फिगर्स विल ऑलवेज बी द सेम. दिस इज द टेस्टिंग पॉइंट. और चंद्र का टोटल करके उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर करना ही करना था हमको. दैट यू कैन डू योर सेल्फ.
विदाउट मच ऑफ प्रॉब्लम्स। चंदर का लोन अकाउंट आप कैलकुलेट कर सकते हो, कितना आएगा टोटल, यू डू इट क्विकली। 26,100 आई थिंक। 26,100 से अगर हम ये माइनस कर दें 15,800, तो बैलेंसिंग फिगर कितना बचेगा, 10,000 एंड हाउ मच, 300 रुपीज। दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू गेट द चंदर्स लोन। काफी इंपॉर्टेंट और अच्छा क्वेश्चन था ये, इसको देख लीजिएगा एक बार, समझें इसको और बताएं कि इसमें क्या डाउट है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सिमिलर है बिल्कुल, तो इसमें मुझे लगता नहीं कि मुझे कराने की जरूरत है क्योंकि सेशन इज गेटिंग लिटिल लॉन्गर, बट चिल्ड्रन दिस इज एन important थिंग टू बी अंडरस्टूड by all of you. I wanted that everyone to understand these concepts. So if you look into this question, if you look into and you can watch this session on a faster speed at 1.5 or 1.25 according to your convenience, but yes, I am going to give you a brief understanding of 46th question. NSB are partners sharing profit as 1 by 2, 1 by 6, 1 by 3. यहीं पर आपको अलर्ट लेना है. 1 by 2, 1 by 6, 1 by 3 means it is 6, so 3 is to 1 is to 2. जी हाँ, it is not 3 to 1 always. It is 3, 1, 2. Be very very alert. रेशो में भी हमारा ट्विस्ट हो सकता है, खास तौर से बोर्ड के क्वेश्चंस में. CBSE 2019 का क्वेश्चन है. I am explaining all important questions asked in the previous year questions. तो प्रीवियस ईयर एग्जाम में आप देखोगे तो ज्यादातर रेशो में ही कंफ्यूजन डालता है आपके लिए. कैपिटल्स गिवन है, जनरल रिजर्व गिवन है, क्रेडिटर्स गिवन है, फ्री होल्ड प्रमाइसेस, मशीन, फर्नीचर, स्टॉक, डेटर्स, लेस प्रोविजन एंड कैश. He retired and on that date they agreed for the following: freehold premises and stock appreciated by 20% and 15%. तो रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में ले जाएंगे इसको उठाकर. बाय फ्री होल्ड premises कैलकुलेट कर लोगे आप लोग और बाय स्टॉक भी आप लोग कैलकुलेट कर लोगे, दोनों हमारे क्रेडिट साइड के आइटम्स हैं. प्रोविजन फॉर बैड डेट्स टू बी इंक्रीज्ड बाय, देखो यहाँ पर ये इंक्रीज्ड बाय कह रहा है 1500. अगर इंक्रीज्ड बाय कहेगा तो सेम वैल्यू ही पोस्ट करेंगे टू प्रोविजन फॉर बैड डेट्स. 1500 ही हम यहाँ पर डेबिट साइड पर ट्रांसफर करेंगे. अगर अप टू कहता 1500 तो हम 500 लेते. अगर ये इंक्रीज अप टू कहता, लेकिन इंक्रीज बाय कह रहा है तो 1500 ही लेंगे और बैलेंस शीट में 500 माइनस करेंगे. ऑन बीज रिटायरमेंट गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यूड एट कितना, 21,000. यू नो वेरी वेल, अगर गुडविल फर्म की वैल्यूड कर रखी है तो ओल्ड रेशो में से, अब हमारे को न्यू रेशो तो क्वेश्चन में गिवन ही नहीं है, तो ओल्ड रेशो से हम बी का शेयर डिलीट कर दें अगर हम, तो कितना बचना चाहिए, 3:2. यही न्यू रेशो हो जाएगी, यही गेनिंग रेशो हो जाएगी. तो 21,000 को आप डिस्ट्रीब्यूट अगर कर दोगे 3:2 की रेशो में बी का शेयर निकालने के बाद, तो बी का शेयर हमारा कितना निकलेगा इसमें से, 21,000 से अगर मैं बी का शेयर बोलूं तो बी का शेयर 3:1:2 था रेशो, तो 1/6. तो 1/6 हो जाएगा. 6 3500. ये 3500 कौन लेकर आएगा स्टूडेंट्स, ऑफ कोर्स पार्टनर एन एंड पार्टनर एस. तो बी हमारा लास्ट वाला पार्टनर है, नहीं तो हमें यही माइंड में रहता है कि ए बी सी है. यहाँ पर बोर्ड ने जानबूझ के पार्टनर्स के नाम ऐसे दिए थे कि वो सेंटर वाले पार्टनर को पार्टनर रिटायरिंग माने, जबकि बी इज द लास्ट पार्टनर. कितना देखिए, साइकोलॉजिकली दे आर प्लेइंग विद द ब्रेन ऑफ द चिल्ड्रन. तो 3500 रुपीज को हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे 3:2 में. 5, 2100 एंड 1400 की एंट्री आ जाएगी बाय एन बाय एस करके बी में और टू बी करके एन और एस में. बस सर, लास्ट पॉइंट वो बोलता है कंटेनिंग पार्टनर्स डिसाइडेड टू एडजस्ट देयर कैपिटल्स इन न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो. कौन सी कैपिटल्स एडजस्ट करने के लिए बोल रहा है, क्वेश्चन में अमाउंट तो गिवन ही नहीं है. यू विल से सर प्रीवियस क्वेश्चन में जैसे हमने करा है, ऑल एडजस्टमेंट्स करने के बाद, रिवेल प्रॉफिट, जर्नल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद, गुडविल एडजस्ट करने के बाद जो बैलेंसिंग फिगर आएगी, जैसे कि हमने अभी किया है आपके लिए, देखिएगा. देखिए हमने कैसे करा है प्रीवियस क्वेश्चन में स्टूडेंट्स. व्हाट डिड आई डू इन द प्रीवियस थिंग, यस, हमने बैलेंस ब्रॉट डाउन, रिवैल्यूएशन, जर्नल रिजर्व सब कर लिया, कैपिटल्स भी निकाल दी थी. उसके बाद हमने क्या निकाली थी, क्रेडिट साइड टोटल माइनस डेबिट साइड टोटल. क्रेडिट साइड टोटल माइनस डेबिट साइड टोटल. जो कैपिटल बैलेंस निकले थे उनका टोटल करा था और उस टोटल कैपिटल को हमने न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में डिस्ट्रीब्यूट किया था. इन द सिमिलर मैनर स्टूडेंट्स, हम लोग सारी एडजस्टमेंट करने के बाद जो कैपिटल इनकी निकल कर आएगी, इन दैट कैपिटल विल बी शोइंग द अमाउंट ऑफ एडजस्टेड कैपिटल्स, एन और एस की टोटल करके प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे. और जो बैलेंसिंग फिगर बचेगा वो टू करंट या बाय करंट होगा.
and that will be absolutely same on both the sides. So just to avoid the length of the session, I am closing my session here by explaining you this question. Let me see whether you solve this question or not. All the very best to all of you children. Thank you. Have a great time. Stay blessed and do practice as much as you can. Thank you.